اچھا صاحب آگے والی آیت جو ہے کیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب میں عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب یہ کتاب نبذوا کتاب کتاب نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس کتاب کو جو اس پر نازل ہوئی تھی، نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کتاب کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا نا، نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، نبذ فریق منہم کتاب اللہ من الذین اوتوا الکتاب، ہاں ان لوگوں میں سے جو اس کا نتیجہ ہم نے بتا دیا سب نا، وہ اس سب کو ایک ہی ساتھ میں جو ہاں اس میں سب کا نتیجہ جو ہے نا، اس کا نتیجہ جو دو تین آتے ہیں نا سب کا ایک ساتھ، ورنہ آپ گڑبڑ ہو جائیں گے، سب کا ایک ساتھ جو ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ غور کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ اس میں بھی اسی کی تائید ہو رہی ہے، یہ ایک فریق جو ہے کیا ہے اللہ کی بات کو پیچھے ڈالنا ہے، کانہم نبذوا کے غلام کانہم گویا کہ اس کتاب کو جانتے ہیں، کس کتاب کو؟ نبذوا کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈالنے ہیں، اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا انہوں نے ایک فریق نے، جو دشمن ہے اسلام کے، اس نبی کے دشمن، قرآن کے دشمن ہے، جو جبریل کے دشمن ہے، میکائیل کے دشمن، اللہ کے دشمن ہے، کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، کانہم تو اظہر صاحب کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ سے، کتاب پیچھے ڈال دیا، کون سی کتاب؟ ہاں گڈ، توریت کو پیچھے ڈال دیا، گویا توریت کو جانتے پہچانتے نہیں، یہ اب اور واضح کر دیا اس نے، اللہ کی کتاب توریت کو پیچھے ڈال دیا، اگر توریت کو آگے رکھا ہوتا اس کو غور کرتے، جو پیشن گوئیاں ہیں اس میں، اس نبی کی آمد کے سلسلے میں، قرآن کی آمد کے سلسلے میں، احکام قرآن کے سلسلے میں جو پیشن گوئیاں ہیں، تو پھر اس کو جانتے اگر اس پر ایمان لاتے، اس پر ایمان لاتے، لیکن تو ایسا ڈال دیا کہ یعنی دوسرے لوگ جان بوجھ کے انکار کرنا، یہی بات ہوئی نا، خوب جانتے ہیں لیکن انکار کرنا، گویا کیوں نہیں جانتے، یعنی نادان بن گئے، تجاوز عارفانہ ہے، خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے اہل کہتے ہیں یہاں نبذ فریق منہم کہہ رہا ہے نا، وہ جو ہے اہل کتاب جو سارے قسم کے تھے، سارے قسم کے اہل کتاب تھے، ان کا ذکر آگے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اہل کتاب جو اس کی تلاوت کرتے حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ کا مرجع کون ہوگا؟ آگے ذرا سوال یہی وہ کا مرجع کون سا؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ علماء یہود کے علماء، بنی اسرائیل علماء جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوت، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا صاحب کتاب سورہ توریت، یہ بات جو یہود کے سارے علماء جو توریت کی تلاوت کرتے ہیں، تو اولئک یؤمنون بہ، وہی ایمان لاتے ہیں، اس پر کس پر ایمان لاتے ہیں؟ لیکن یہ ہے اشرار علماء یہود جو نفرت کرتے ہیں، جن کو ضد ہے، جیسے اوپر ہوتا ہے ضد ہے، ہر دھرمی ہے، حسد مبتلا ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، دنیا پرست ہے، دنیا پرستی نے کیا کیا؟ قرآن سے دور کر دیا، نبی سے دور کر دیا، اور جو علماء ان کے صالح ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل آپ دیکھیں گے جگہ جگہ قرآن مجید، حالانکہ وہ کم ہی لوگ ہیں، قرآن مجید کی خصوصیت دیکھیے، چند لوگ صحیح مگر ان کا اعتراف کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ان کو بڑھاتا ہے، ذکر کرتا ہے، ایسا نہیں ان کو نظر انداز کرتا، ذکر کرتا ہے، اچھے انداز سے ذکر کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم جو آیا، اپنے توریت پر ان کا ایمان نہیں، یہ پھینک دے رہے ہیں توریت کو، اگر توریت پر ایمان ہوتا، سچا ایمان، تلاوت کرتے، حقیقی تلاوت، سچی تلاوت کرتے، سچی تلاوت کا مطلب یہ تم حق تلاوت ہی،
यत्लुल हक़ तिलावती का तर्जमा क्या करेंगे आप? कमा हक़ से बात नहीं बनती, तर्जमा होना चाहिए जो तर्जमा जो उसकी तिलावत करते सच्ची तिलावत, सच्ची हक़ तिलावती माने तिलावतन हक़्क़ा, हक़ माने सच्ची है सच, तो उसकी तिलावत करते सच्ची तिलावत। जब सच्ची तिलावत करते तौरात की तो इस नबी पर ईमान लाते, इस किताब पर ईमान लाते और इस उम्मत में दाखिल होते हो, जानते हो हमारा शरफ इस किताब पर ईमान लाने में है, हमारी बुलंदी इस नबी पर ईमान लाने में, इसको लुटाने में नहीं हो समझते। ये बात जानती अल्लाह किताब उन्होंने पीछे डाल दिया और नफ्स की बंदगी की ख्वाहिशात नफ्स के पीछे कर दिया। अल्लाह की किताब छोड़ने के नतीजे में जो चीजें पैदा हो अब उनका जिक्र कर रहा है कुरान में। अल्लाह की किताब पीछे डाल दिया, उसका पढ़ना छोड़ दिया तो क्या हुआ? अब आगे वत्तबअू मा तत्लू शयातीन, किसके पीछे पड़े हो? किताब पीछे, किताब को डाल दिया। वत्तबअू मा तत्लू शयातीन, उसकी पैरवी की जिसको शयातीन पढ़कर सुनाते थे। मा तत्लू शयातीन, शयातीन से मुराद बोलिए हसन साहब, शयातीन से मुराद उलमा, बिल्कुल सही। शयातीन से मुराद इनको उलमा, अशरार उलमा, उनको शयातीन देखे बाबा तालीम इस सूरत जो उनको पढ़कर सुनाते थे शयातीन, यानी इनको उलमा। आगे क्या है? अला मुल्क सुलेमान। चलिए बस रुकिए, बस इतना तर्जुमा पढ़ेगा, फिर हम गुफ्तगू करेंगे। तबाह किया इन्होंने इसका जो पढ़ते थे शैतान सुलेमान की बादशाही में पढ़ते थे। शयातीन से मुराद उलमा, उलमा यहूद जी, अशरार उलमा यहूद हजरत सुलेमान की बादशाही में पढ़ते थे। हजरत साहब अला है कि फी है? अला माने पर और फी माने में, किसका तर्जुमा हो रहा है? देखिए जो पढ़कर सुनाते थे क्या है? अला मुल्क सुलेमान, हाँ सुलेमान की बादशाही में, और नहीं कुफर किया सुलेमान ने। उस आगे इसमें तर्जुमा कीजिए हाजिर साहब। वत्तबऊ मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलेमान, वो पैरवी की उसकी जो शयातीन पेश करते थे। अला मुल्क सुलेमान, अला मुल्क सुलेमान का जवाब सुलेमान की बादशाही में। अब सवाल पर मैं कहां से आ गया? रुकिए रास्ता बाद में। मुल्क अला है ना, देखिए अला है तो अलग तर्जुमा होना चाहिए, न कि अला का तर्जुमा फिर कर दिया जाए। ठीक है कि नहीं? आपका तर्जुमा है जो शयातीन सुलेमान के दौरे हुकूमत में पढ़ते पढ़ाते थे। जो शयातीन सुलेमान के दौरे हुकूमत बात हुई में ही किया। सुलेमान की बादशाहत के वक्त इन्होंने भी बादशाहत के वक्त अला है वक्त। उर्दू सब तर्जुमा क्या है? सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर, ये बात है, नाम लेकर, सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश करते थे। सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर मतलब हवाला देकर निस्बत करते थे, निस्बत कर रहे थे, हवाला दे रहे थे। क्या हजरत सुलेमान की सल्तनत का हवाला देकर। समझ देख नहीं आप लोग? गोया कि आला इफ्तरा पर्दाजी के माने में, इफ्तरा पर्दान झूठा इंतसाब करके पैरवी की उन्होंने उन शयातीन की जो उनके सामने पेश करते थे, कि जो भी पेश करते थे हजरत सुलेमान की जान मंसूब करके झूठा अला किद को बताता है, मुफ्तरीन है अला मुल्क सुलेमान। क्या कहते थे कि देखो हजरत सुलेमान की जो सल्तनत थी इसी के जोर पर कायम थी। किताबुल्लाह को छोड़ दिया, पैरवी की किस चीज की? उस चीज की जो शैतान को समझाते थे
कि देखो सुलेमान की अजीम शान सल्तनत इसकी बुनियाद पर कायम थी। ये अहदे सुलेमानी नहीं है, बल्कि हजरत सुलेमान के बाद यहूद के उलमा तौरेत को छोड़कर जिन चीजों पर वो मुब्तला हो गए उसकी जाने में इशारा है। और ये यहूद उलमा कहते थे कि हजरत सुलेमान की सल्तनत किसी बुनियाद पर कायम है। वो बुनियाद क्या है, आगे वाले किस चीज के पीछे पड़ गए वो? सुलेमान ने सेहर, ये बात है, सेहर, जादूगरी। ये जालिम एक तो जादूगरी की पैरवी की उन्होंने, उसको फरोग दिया, और दूसरा काम उन्होंने क्या किया है, उसका इंतजाम किधर किया? पैगंबर, जादूगरी, ये अखलाकी जवाल की इंतहा थी। बोहतान लगाया किस पर? ये झाड़ फूक करने वाले, ये आमलीन जो होते हैं वो हजरत सुलेमानी का नाम देते, या उस जमाने के यहूद या आज भी नक्शे सुलेमानी हर जगह, नक्शे सुलेमानी हर जगह बिक रहा है। समझिए ख्वाजा साहब क्यों हर एक नाम ले रहा है किसका? हजरत सुलेमान का। और ये समझाता है आवाम को क्या कि सुलेमान की इतनी जबरदस्त सल्तनत किस पर कायम थी? इसी झाड़ फूक पर जारी, उसकी जो है तरबियत कर रहा है। जब किताबुल्लाह कोई कौम छोड़ती है तो गिरती है, किताबुल्लाह बुलंदियों पर ले जाती है, अल्लाह की किताब बुलंदियों तक ले जाती है, आसमान में पहुंचाती है। अल्लाह की किताब जब कोई कौम छोड़ती है तो कहा जाती है पस्ती की तरफ, पस्ती की तरफ, यहां तक पस्ती की जादू, ये खुदा का कलाम, और फिर और इंतसाब कर रहे हैं किधर कि हजरत सुलेमान की हुकूमत इसी जादू की बदौलत कायम थी। बात वाज़ेह हुई ख्वाजा साहब? उनके साथ उनका है। अब आप देखिए कि फी मुल्क सुल्तान हजरत सुलेमान के अहले हुकूमत में कोई जो है यहूदी आलिम हिम्मत कर सकता था? बोलिए आप, हिम्मत कर सकता था उनकी अहले सल्तनत? और ये जुर्रत करे कोई ये कहे कि साहब इनकी हुकूमत से कायम है? ये हरगिज नहीं हो सकता था, इम्कान नहीं इसका। जिनसे यकीनन आपको मालूम है क्या काम लेते थे? कई तरह के जिन है, मालूम है आपको, शयातीन आता है। बाद जो है जो जिन है, जिन जो मुखालिफ तरीन थे क्या करते थे? मुखालिफिन को देखिए, दो एक तो उन पर ईमान लाने वाले थे, ईमान रखते थे उन पर ना, उनके सहाबी थे, तो उनको जो है क्या करते थे? उनके साथ थे, हुकूमत के साथ थे। और जो इनकार कर रहे थे, जबरदस्ती तो कोई पैगंबर नहीं किसी मुसलमान बनाता, मालूम है आपको। जब इनकार करते थे, सरकशी करते थे, क्या करते थे? उनको सजा देते थे। नहीं, उनको वो खटाते थे, काम में लगाया था उन्होंने। वो जो तामीरात उन्होंने कराई आपको मालूम है, बहुत सारी चीजें सनत इजाद किया, बहुत सारी चीजें जो वो इन्हीं से लेते थे। ये जो शयातीन है, ये काफिर शयातीन, और जो सरकश थे, बागिल थे, उनको क्या करते थे? वो जेल में जाना था, फिल अस्फा, कहा है ना, उनको क्या करते थे? जेल में डाल रखा था। तो काफिर से हीरे, मोती, जवाहरात या गुसूल, आपने सूरह अंबिया में पढ़ा होगा ना, और मेरे शयातीन मन यगूसून लहू व यामलून अमलन दून ज़ालिक, कुछ तो होताखोरी करते थे, ये सब करते थे। तो सुलेमान के अहद में जादूगरी को फरोग दिया गया, बोले ना, हो नहीं सकता है, जिनके सामने जिन भी मुसख्खर, ये अजीब गरीब बात है। किसी कौम पर जवाल आता है, तो जवाल जब आता है किसी कौम पर, तो फिर वो किस चक्कर में पड़ती है? हाँ, और रूहानी इलाज, ये तो खुदा का कलाम रूह, बोलिए खुदा कलाम क्या है? रूह है। खुदा कलाम में रूह है ना, राम जी बाबा कहता है ना सूरह शूरा में, वकज़ालिक औहयना इलैका रूहन मिन अमरिना, इस तरह हमने नबी तुम्हारे रूह उतारी है। खुदा का कलाम क्या होता है? रूह होता है।
कुरान मजीद खुद रूह है, रूह है। अच्छा साहब, और आपने देखा पिछले दुरूस हमने खुद बताया है कि अल्लाह के रसूल ने किस तरह का रूहानी इलाज कराया है। जबरदस्त जबरदस्त कायापलट हुई कुरैश की और फिर अरबों की, किसके तरीके से जबरदस्त उनकी देहनी तब्दीली हुई और उन्होंने नकला बर्पा कर दिया। जी, नकला बर्पा कर दिया। लेकिन साहब जवाल आया है, जब जवाल आया तो कुरान मजीद रूह समझ लिया गया। क्या रूह समझ लिया गया? झाड़ फूक। हर सूरत में आप समझे कि मुवक्किल होते हैं ख्वाजा साहब, हर सूरत के मुवक्किल होते हैं। सूरह इखलास में 3-3 4 मुवक्किल हैं। हाँ, सूरह इखलास में मुवक्किल है। और जाहिर जो कम ये बन जाए और कहेंगे रूहानी इलाज है, इसी कहते हैं रूहानी इलाज। अजीब गरीब। और ये 800 साल से है, 800 साल से ये चल रहा है। ये मिल्लत के हाथ से जब तलवार छूटी है ना, जब छूट गई तलवार तो फिर क्या हो गए? भागे हैं जो उन्होंने मारा है, जब भागने लगे खामखाम बैठ गए और फिर मुराकबे में हो गए वो, और फिर तस्कीर अजिन्ना करने लगे। तस्कीर जिन्हों की तस्कीर, क्यों कायनात की तस्कीर हम नहीं कर सकते। कायनात में जो है हौसला चाहिए, कुव्वत इरादी चाहिए। अल्लाह ताला इतना तेज बात नजर रहा नहीं, तलवार हाथ से गिर गई, छूट गई। अब कहां चले गए? खामखा और मुराकबे, और जिन को मुसख्खर करने लगे, जिनको दुनिया को मुसख्खर करने के लिए बर्पा किया गया था, और वो जिन की तस्कीर करने लगे। ये अखलाक इजहार मुझे खबर दी इन आयात की रोशनी में। मगर अफसोस है कि हम तो यहूदी बोल रहे हैं इस वक्त ना, लेकिन भाई अफसोस होता है कि मुस्लिम उम्मत भी इसमें मुब्तला होगी। और क्या क्या पूछिए तो सबसे ज्यादा झाड़फूक करने वाले फिर यहूदी है अभी है। वो तो निकल नहीं सकते। वो उनके, और फिर हमने हमारे यहाँ उन्होंने पैदा कर दिया था झाड़ फूक कैसे और क्या क्या चीजें आ गई हैं, पूछिए मत। बोले जावेद साहब मालूम है ना, ये जो है ये देवबंदी उलमा माशाअल्लाह सब अकीदे तो दुरुस्त करते हैं, मगर ये इसमें अकीदा आसेब है, जो भी आसेब कर दो साहब, वो रूहानी इलाज कर रहे हैं कि पूछे। अगर बोले जावेद साहब हम गए सराय में, तो हमारे कुछ दोस्त आसिम मौलाना शेर साहब थे ना, हाँ तो थे, तो उन्होंने कहा कि साहब बहुत भीड़ थी। तो मैंने समझा कोई नेता आया था, हमने पूछा कहाँ भीड़ थी? उन्होंने कहा भाई एक आमिर साहब के यहाँ थी। उन्होंने कहा अच्छा आमिर साहब क्या कहा है? सर वो पहुंचे आमिर साहब। देखिए अजीब हाल है, आलिम आमिल एक आलिम होता है, वो आलिम है एक आमिल है। अब देखिए आमिल का मतलब क्या है? कुरान मजीद पर अमल करने वाला नहीं, बल्कि झाड़ फूक करने वो आमिल होता है। आमिल बहुत बड़े आमिल हैं वो, मतलब झाड़ फूक करते हैं। ये नहीं कुरान मजीद के मुताबिक की जिंदगी ना, ये मतलब बहुत बड़े आमिल थे। अच्छा क्या खूबी। उन्होंने कहा साहब फला साहब पर कुछ था, उन्होंने बुलाया तो रात में उन्होंने कहा कि शबाद हम करेंगे अपना अमल। तो रात में अमल कौड़ी नहीं, कौड़ी जानते हैं हम लोग, कौड़ी भूल आए हम। तो उन्होंने कहा चलिए गाड़ी बैठी, कौड़ी आई। तो कहा अच्छा रुकिए, एक हांडी जो पुरवा होता है ना, हांडी जानते हो क्या? मिट्टी के जो बर्तन होता है वो ले आई। बिल्कुल उसको इस्तेमाल न किया, बिल्कुल नया ले आए साहब। वहाँ कोई उलट दीजिए, उलट दिया, फिर मुनाकबे में कौड़ी आ गई। मैंने सुना, मैंने कहा भाई देखिए हम जो है ना आगे इतनी बात बता रहे हैं कि आमिर साहब की, हम आमिर साहब की बात नहीं मान सकते। क्यों नहीं मानोगे? वो भी इस्लाही लोग थे, सब इस्लाही थे, आप समझ लीजिए। बस ये है कि देवबंद से आए हुए लोग थे। तो हमने कहा भाई ये तो हमको नहीं समझ आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा है? हमने कहा कि इतने में पहुंचे भी हैं, तो अगर ये रमलल्ला जो वहां बाबरी मस्जिद शहीद करके उसको बना दे, जिनके जरिए कहें
हुक्म दे जिन रमजान लिया, पूरी कौम तबाह हो रही है इसकी वजह से, पूरी कौम परेशान, और ये रमजान बैठा हुआ है, और ये अजिन्ना वाले जो बेशुमार उलमा यहाँ है, और वो कोई जिन हुक्म नहीं दे रहे हैं जो ला रहा है। तो एक दूसरे बड़ी मस्खरात, बड़ी जावेद साहब के दोस्त बड़े मस्खरे, अगर तुम नहीं जानते हो, जब से बीजेपी की हुकूमत हो गई है सब तो सब जिन भी आरएसएस ने बीजेपी में दाखिल हो गए। समझ गए कि नहीं आप? ये क्या क्या कर रहे हैं, उनको पागल कर दिया, उनको पानी, जो बड़े बड़े नेता तुम्हारे हैं जी, जो तुमको तुम्हारा कत्लेआम कर रहे हैं, करना चाहते उनका मंसूबा है, उन पर तुम क्यों नहीं देते? बेबस तुम हो। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो इसको, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कागजी से दूर कर रहे हो और समझते हो कागजी सिद्धार्थ का बनेगा। ये बड़ी अफसोस की बात है। बरखा चलिए, ये यहूद पर हम तबसरा कर रहे हैं, उन पर सही बात ये है, इसमें हमको सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया। जादूगरी क्या है? कुफ्र। आगे चलिए, वलाकिन शयातीन कफरू, शयातीन ने कुफ्र किया है, युअल्लिमून नास सिहर, लोगों को जादूगरी का दर्स देते हैं। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। चलिए, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, बस वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। चलिए, तो पीछे पड़े उस चीज के जो बाबिल में दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर नाज़िल की गई थी। बस ठीक है। अब देखिए, माँ का फरा दो बातें हैं। उन्होंने पैरवी की उसकी जी जो शयातीन पढ़कर सुनाते थे जादूगरी, वो और उसकी पैरवी की जो दो फरिश्तों पर बाबुल में उतारी गई थी। तो दो फरिश्तों पर क्या चीज उतरी थी? एक सवाल पैदा होगा ना, क्या जादूगरी उतरी थी? शहर नहीं, क्योंकि जो शहर का अधिक हो चुका है, ये जो चीज होगी वो दूसरी होगी। जा ज़ैदुन व अम्रुन, वाव है ना, वाव साथ अतफना, जा ज़ैदुन व अम्रुन, ज़ैद अम्र आया, ज़ैद अलग है, अम्र अलग है, दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग है ना। तो जाहिर है कि माउन ज़ल मलकैन जो बाबिल जो दो फरिश्तों नाज़िल हुआ, वो जादूगरी नहीं हो सकती। वो क्या हो सकती है? मुस्तफा साहब समझ गए ना कि नहीं भाई, क्या माउन ज़ल मलकैन, और उस चीज की पैरवी की जो दो फरिश्तों पर नाजिल हुई। दो फरिश्तों में क्या चीज नाजिल की गई? सवाल पैदा होगा, क्या चीज नाजिल की गई? आप ही बताएगा, गौर करके सोचिए, क्या चीज नाजिल की गई? जादूगरी तो फिर वो तो उसका जिक्र हो चुका है ना। वाह जब होता है, वाह मुबारक चाहता है। जैसे मिसाल, जा ज़ैदुन वो अम्रुन, ज़ैद अलग है, अम्र अलग है, दोनों अलग अलग है ना, दोनों एक हैं। तो कोई अलग चीज माननी पड़ेगी ना, और उसकी जो दो फरिश्तों पर बाबुल में उतारी गई, तो उसकी पैरवी क्यों उन्होंने? तो दो फरिश्तों पर बाबुल क्या उतारी गई? तो हमारे मुफस्सिर इसका जवाब ये देते हैं कि दो फरिश्तों की जो चीजें यहूद में गैर मामूली जादूगरी, तो दो फरिश्तों पर कुछ अमलियात उतारी गई जिसके जरिए जादू से उनको बचाया जा सके। समझ गए आपके? नहीं तो कहते हैं ताबीज, गंडे, ठीक है ना। मुस्तफा साहब ताबीज और गंडे उतारे गए, लेकिन कुछ मुफस्सिर ऐसे हैं कि साहब मां नाफिया है। मां क्या है? नाफिया है। मां नाफिया जब होगा तो क्या हो जाएगा? और दोनों फरिश्तों को भी नहीं उतारा गया है। समझ गए नहीं आप? सैयद कुतुब शहीद ने मां नाफिया बनाया है। सैयद कुतुब शहीद ने मां नाफिया बनाया है। मौलाना आजाद मां को नाफिया बनाते हैं। समझ गए नहीं आप? उर्दू मुतरजमे में मौलाना आजाद है और मौलाना जो है सैयद कुतुब शहीद है।
اور قدیم مفسرین میں ابو مسلم اصفہانی ہیں جس کے جانے میں مراسم میں شائع کیا ہے، یہ سب نافیہ اس طرح اور وہ عملیات کی پیروی کرنے لگے جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بائبل میں نازل کیے گئے تھے. قطب شیخ نیچے دیکھیے حاشیہ میں دیا ہے، حاشیہ میں دیا برکت ساتھ دیکھیے حاشیہ میں ہے بہترین ایمان نافیہ ماں نافیہ کہا ہے نا، ماں نافیہ کہا ہے. مولانا آزاد اردو مترجم سب سے بڑے مولانا آزاد ہے، مولانا آزاد نے ترجمہ کیا برکت میں مختصر چلتا ہوں دیکھیے رات پر کیونکہ آیت جو ہے بڑی اہم تھوڑی سی ہے نا. تو اب انہوں نے جو کچھ اگر مان لیجیے ماں نافیہ نہیں ہے کچھ فرشتوں میں اتارا گیا تھا تو ظاہر جادوگری نہیں، کیونکہ جب جادوگری میں تمام پیغمبروں کے نزدیک حرام ہے جادوگری، کسی پیغمبر میں جادوگری حرام ہے تو فرشتوں کی طرف اتارا جائے گا اور فرشتے اس کو مولوی بنا کر بھیج جائیں گے، نہیں ہو سکتا. تو ہمارے یہ مفسرین جواب دیتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جادوگر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ جائز قسم کی عملیات، سمجھ گیا آپ نے، جائز قسم کا عملیات ہی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. دیکھیے جو ہماری تفسیر کی روایات میں ہے نا، یہ لوگ نے جو فائدہ اٹھایا ہے نا حسن صاحب، وہ جائز بھائی کوئی تعویذ کوئی گندا ہے اس طرح کی باتیں ہوں گی تو ظاہر کہتے ہیں بھائی یہ تو ایک ہم کرتے ہیں جو قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے. تو آگے لیکن جو جملے ہیں دیکھیے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة، وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے سکھانے میں کہ ہم فتنہ ہیں، فتنہ ہم ایک آزمائش ہے، آزمائش ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، ہاں تو وہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے، وہ جو میاں بیوی کے درمیان یہ جھاڑ پھونک کھانے والے دیکھے یہ کرتے ہیں نا آج بھی، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا ان کا خاص مشغلہ ہوتا ہے. اور آگے چلیے ذرا سا جی وما ہم بظاہر، حالانکہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر جگہ جگہ بات آتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک دن کا بھی ہل نہیں سکتا ہے، ہر چیز میں ہے. اور آگے چلیے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ہاں اور سیکھتے وہ تھے جو ان کو نقصان پہنچائے، کوئی بھی فائدہ نہ فائدہ والی چیزیں نہیں سیکھتے. اور آگے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور ان کو معلوم تھا خوب اچھی طرح کہ اس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں آخر ان کا کوئی حصہ نہیں، جس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں آخر کوئی حصہ نہیں ہے. اور بدترین ہے وہ اعمال جو کر رہے ہیں، ملبس معاشرہ میں لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے تو ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتے تھے. آگے کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لاتے واتقوا اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرتے تو من عند اللہ لمثوبۃ من عند اللہ، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے اچھا بدلہ ملتا ہے. لو كانوا يعلمون، ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لاتے اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ملتا ہے، اچھا بدلہ ملتا ہے. لو کانوا یعنی اگر وہ جانتے. یہ ہمارے مفسرین نے کاش کا ترجمہ دیا ہے، ہمارے مفسرین نے اردو مفسر بیشتر اردو مترجمین نے کاش کا، حالانکہ کاش نہیں ہونا چاہیے. لو جو آیا لو شرطیہ ہوتا ہے نا، لو شرط کے لیے بنایا گیا، تمنا کے لیے نہیں، تمنا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. تمنا کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے ودا آتا ہے، ودو لو تو بھینو، ان کی خواہش ہے کاش تم نرم پڑ جاؤ. وہ ودو لو تکفرون، وہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ تم کافر ہو جائے. آگے ودا کثیر منہم، ودا ہے نا آگے آ رہا ہے تو ودا آتا ہے اگر تمنا کے لیے ہوتا. تو یہاں تمنا نہیں ہے بلکہ یہاں شرط ہے. البتہ جواب اگر یہ جانتے ہوتے ایسا نہیں کر سکتے. اب ذرا دیکھیے کہ آیات میں کیا جادوگری یا ٹونے ٹوٹکے کی پرامری حمایت کر رہا ہے؟ جو یہ آخری جو آیت آئی بولیے حمایت کر رہا ہے؟ نہیں.
बल्कि क्या कर रहा है, इनसे दूर हटाने की कोशिश कर रहा है, मजम्मत कर रहा है इसकी। ये अमाल अच्छे नहीं है, इंसान को बलवा देंगे, अल्लाह की जरूरत से हटाने वाले अमाल है। तो इसकी रूह ये समझा रही है कि इससे बचना चाहिए। मगर इन्हीं आयात की वजह से लोगों ने गुंजाइशें निकाली और झाड़ फूंक के बहारा दुकानें खोल ली गई। अल्लाह ताला बचाए इसको। आगे चलिए। समझ में नहीं आया दरअसल क्या उस पे फरिश्ते क्या लेकर आए थे? जादू के अलावा क्या था? लगा कि कुछ ऐसे आवाज, कितना नहीं, कुछ ऐसे आवाज जो उनका दिफा किया जा सके। जादू का जादू का तोड़ हो उसमें, जैसे तावीज, जायज तावीज। अगर इसको मानाफिया मान लेते हैं, जैसा सैयद कुतुब और दूसरे मुफस्सिरीन ने और दूसरे लोगों ने मान लिया है, तो वहाँ इश्काल क्या हो सकता है आगे? आगे वाला जुमला मा यफरकून बिही बैन अल-मर्इ व ज़ौजिही, तो ये तो या तकाज़ा उसके मुखालिफ हो जाएगा। मां नाफिया बना लिया आपने। मां नाफिया बनाने के बाद वो तो मसला रह जाएगा वहां ना, कुछ तो है ना मसला। इस वजह से वो सवाल तो बहाल बाकी रहेगा कि आखिर फरिश्तों में क्या नाज़िल हो रहा है, उसका जवाब लोगों ने दिया। लेकिन जवाब, सवाल अब भी बाकी है जवाब देने के बाद कि वो जो है उन लोगों को तफरीक कराते थे, उस तरह की तालीम देते थे, लोग उनसे सीख रहे थे। तो लोग वो तालीम नहीं दे रहे थे तफरीक, बल्कि लोग उनसे सीखते थे, उनसे तो सीख कर वो लोगों को तफरीक। मसला आपसे जो मैंने बात सीखी है, जो सालिह बात है, तो हम उसमें जो है बिलअक्स माना नहीं निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? असल में तलवार अल्लाह ने उतारी है। अब वो तलवार किस लिए उतारी है, किस लिए दी है? ताकि आपको गालिब किया जाए, और हम अपने ही लोग गला काटने लगे जी। तो गोया तो वो ये कर रहे, वो गला काट, उसमें दोनों चीजें हैं, और हर चीज में ऐसा होना, दोनों पाले होते हैं। तो कुरान मजीद यहदी भी है, तो ये जवाब जो आपका जवाब लोग दे रहे हैं, हमारे मुफस्सिर ने ये जवाब दिया है। उसका पढ़ें, ये आयत जो है ना थोड़ी पेचीदा है, थोड़ी आयत ज़ाहिर है। इस वजह से हम देख रहे हैं ना कि वो जो मुफस्सिर में इख्तिलाफात हुए हैं। बाद लोगों ने तो जादू का इनकार किया है, बाद मुफस्सिर ने जादू का इनकार कर, जादू कोई चीज ही नहीं। लेकिन बहरहाल ये तो हम नहीं कह सकते कि जादू नहीं है, अच्छी मसला है, अकीदा मसला है। लेकिन कम से कम जो आयत आ रही है, इसकी रूह का दो तीन आयतें हैं ना, उसमें आखिर जो उसकी रूह क्या समझा रही है? क्या इसकी हिमायत की जा रही है जादू की या तारीफ गंदे की? नहीं ना, बल्कि क्या उसकी एक मदद है, मिल्लत को उससे बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद क्या वो जानते ऐसी हरकत नहीं कर सकते, ये लग रहा है। मगर अब हमको तो यही बात समझ आ रही है, लेकिन वैसे है पेचीदा। इस पेचीदा। हाँ, आपकी जो बात है ना, इस आयत में जो सीख रहे थे कि आप उस सूरह निसा में जहाँ आती है, हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, यहाँ भी देखिए आप एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। अल्लाह किसी को नवाजता है तो उसको हसद में पड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बाद में गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना, आगे चलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।